consider something before using their work, like their competence level, their capability, and their independence in case of specialists. And also need to consider the like how much responsibility should be given to them, or how much the work he need to use. So our next topic for today is specific area of engagement risk. We are in the initial stage of planning, and we are uh, considering the risk that can be associated with the entity. So one more risk is maybe due to laws and regulations. So every company has some laws and regulation that they need to adhere to. In case of any violation in these laws, there may be chances that it might create the financial statement misleading or have an impact on the financial statements. So what happens when an auditor find any area related to this compliance part? So we'll discuss today. Just wait for 1 minute. Okay. The auditor, in conducting an audit of financial statement, must take into account the applicable laws and regulatory framework. He must perform tests of compliance with laws and regulation that are fundamental to entity's business that may have a direct or indirect effect on the entity's financial statement. So, as an auditor, when he is doing the audit of financial statement, he have to look the legal and regulatory framework, and any laws and compliance the entity should need to adhere to, and that can have the impact on financial statement, whether it is directly or indirectly. So even if an audit is performed in accordance with the guess, an avoidable risk may exist that some material misstatement not be detected. Inherent limitation on the auditor's ability to detect material misstatement are greater due to following reasons. So even though you perform your audit in a very effective manner, there will be always some risk that some misstatement may not be detected by an auditor. So if it is due to following reason, many laws and regulation relate principally to the operating aspect of the entity and therefore do not affect the financial statement and are not captured by entity's information system. Any non-compliance may involve conduct designed to conceal it, such as collusion, forgery, or intentional misrepresentation made to the auditor. A court of law, not the auditor, determines if an act constitute non-compliance. So बिकॉज ऑडिटर की ड्यूटी ये नहीं है कि कंपनी के लॉज रेगुलेशन चेक करना. बेसिकली ही हिज ड्यूटी इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो अगर कुछ लॉज एंड रेगुलेशन का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है, तो हो सकता है कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू कैप्चर दैट, बिकॉज आपकी ये जो भी नॉन कॉम्प्लाइंस पार्ट है, आपके जो भी फ्रॉड होते हैं, कॉल्यूजन्स होते हैं, तो वो ऐसे तो डिजाइन नहीं किए जाते ना कि कोई भी इजीली उसे पकड़ पाए. कंपनी के फ्रॉड एक बेसिकली बहुत पर्टिकुलर डिजाइन, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होते हैं कि नोबडी इज एबल टू फाइंड इट. सो इट देयर आर ऑलवेज लिमिटेशंस कि कुछ फ्रॉड, कुछ नॉन कॉम्प्लाइंस आपकी ऑडिटर की ऑडिट करते वक्त छूट जाए, कि देयर मे बी मिस स्टेटमेंट विच माइट नॉट एबल टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर. Examples that have a direct effect on the determination of material amount and disclosure include tax and pension laws and regulations.
बिकॉज देयर आर सम एरियाज कि जहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट का काम है या जहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे आपकी टैक्स में, आपकी पेंशन पार्ट में, वहां पर बहुत ज्यादा एस्टिमेटेड चीजें हैं। तो उस केस में आपके जो नॉन कॉम्प्लाइंस है, मीन्स जिस अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसका अफेक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। Some laws and regulation do not have a direct effect on the determination of amount, but compliance with laws and regulation may be fundamental to operating aspect of the business, fundamental to the entity, ability to continue its business, or necessary for the entity to avoid material penalties. So there are some laws and regulation की जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है और कुछ का इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप टैक्स रिलेटेड चीजें कर रहे हो या पेंशन रिलेटेड, अगर आप उसमें अपने एस्टिमेट्स, अपने डिस्क्लोजर्स, अमाउंट्स, अपने एस्टिमेट्स चेंज करते हो, सपोज कि आपकी जो पेंशन प्लान्स बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन दी एस्टिमेटेड लाइफ बनाए जाते हैं ना कुछ प्लान्स, तो अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें आपकी एस्टिमेशन पर बेस्ड है और वो एस्टिमेट आप जानबूझकर चेंज करते हो, तो उस केस में आपके फाइनेंशियल्स पर डायरेक्टली इम्पेक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज कैलकुलेशंस चेंज होंगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। वेयर एज कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी कोई ब्राइब पे कर रही है तो उस केस में उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इन केस अगर उससे कोई पेनल्टी चार्ज हो गई तो यस, इट कैन क्रिएट द इम्पैक्ट इन द फ्यूचर। ओके, Yes. so when you are doing the audit, you actually not like design specific procedure to detect the non-compliance part. Many section of the auditing standard can be adapted to the objective of compliance audit. For example, certain audit procedure may bring non-compliance of laws and regulation to the auditor's attention. So basically आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स नहीं होते to detect the non-compliance part, but yes, when you are performing the audit, there may be some procedure which you are actually doing for related to substantive procedure or test of control, जिसके जो procedures करते वक्त you can go you can like find some non-compliance part, like if you are doing the inquiries with management, TCWG, you're inspecting correspondence with relevant licensing or regulatory authorities. So these may be procedures जो आपको laws and regulation related part के regarding evidences दे सकते हैं. Okay. If non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulation become apparent, the auditor should obtain an understanding of the nature of act and circumstances in which it has occurred, obtain further information to evaluate the possible effect on financial statement. So अगर कभी आपको कोई नॉन कॉम्प्लाइंस चीज दिखती है, like you have some doubt or you actually find some non-compliance part, तो as an auditor आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? First of all, you should obtain an understanding about the act कि like वो नॉन कॉम्प्लाइंस पार्ट किस वजह से किया गया है, उसके बिहाइंड क्या रीजन हो सकता है और उसका आपकी फाइनेंशियल्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर कंसर्न है। So उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देन यू नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट appropriate evidences to obtain an opinion and report at the relevant level. Okay, so आपको जो भी उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस मिलते हैं, यू नीड टू गैदर एंड रिपोर्ट एट द लेवल स्पेसिफाइड इन गवर्नमेंटल ऑडिट रिक्वायरमेंट। सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट हम क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल पार्टी को इन्फॉर्म करके चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है कि आपकी जो फंड, आपकी गवर्नमेंट एजेंसी से फंड आ रहा है, तो हम उनको रिपोर्ट करके चलते हैं कि अगर आपके जो एंटिटीज हैं वो फंड प्रॉपर यूज नहीं करी, तो उस केस में हम उन्हें रिपोर्ट कर देते हैं कि येस, दे आर not following the compliance. Identify audit and reporting requirements specified in governmental audit that are supplementary to GAS and government auditing standard, and
परफॉर्म प्रोसीजर टू एड्रेस दोज रिक्वायरमेंट। सो गवर्नमेंट ऑडिट के केस में आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, आप उन्हें फॉलो करके चलते हो। Sorry. Consult with management a level above involved in order to obtain an understanding of nature of the act. ठीक है, तो जब भी आपको ये दिख रहा है, पहले आपने अपने से अंडरस्टैंडिंग की, एविडेंसेस गैदर किए, यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद द मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट एक्चुअली, कि अगर आपको कोई नॉन कॉम्प्लाइंस पार्ट दिख रहा है, you can also consult with legal counsel or specialist if management response does not provide the satisfactory information. The client must make arrangement for the conversation with the legal counsel. So because laws in related matter आप legal counsel से जाकर भी discuss कर सकते हो. Procedure an auditor may perform to address the requirement of obtaining an understanding of an act of identified or suspected non-compliance include. So what procedure an auditor may do to address the understanding? He can examine spotting document and comparing them with accounting records. So अगर आपको कोई भी ऐसे suspect होता है ऐसी कोई चीज, तो you can ask for their documents. उनसे रिलेटेड स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, एंड यू कैन कंपेयर कि जो रिकॉर्ड में मेंशन है और जो उनके डॉक्यूमेंट्स है क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं. यू कैन ऑल्सो कंफर्म विद थर्ड पार्टीज ऑल्सो. आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हो उसके रिगार्डिंग. यू कैन डिटरमिन वेदर द ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रॉपरली ऑथराइज, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है आपकी, सपोज कि आपके फिक्स्ड असेट्स इतने सारे दिखा रखे हैं, यू कैन चेक कि क्या वो फिक्स्ड असेट्स कि ऑथराइज्ड है या नहीं, मींस कि उसका अप्रूवल दिया गया है या नहीं. क्योंकि अगर कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए. तो उस केस में यू कैन चेक कि क्या उनका अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं. बोर्ड ऑफ मिनट डायरेक्टर्स की मिनट ऑफ मीटिंग में से आप चेक कर सकते हो. Considering whether other similar transactions have occurred and applied procedure to identify them. Okay, any doubt? हाँ, एक डाउट है। हम्म. आप मुझे खाली एक कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का एक एक एग्जांपल दे सकते हो? देखो, compliance means कि you have some laws and regulation कि जो आपको follow करके चलने होते हैं. For example कि आपकी जो भी आप bribes देते हो वो illegal है, but in case अगर company pay कर रही है तो इस केस में it can have indirect effect on the financials. नहीं समझा। आप ये तो मानते हो कि कोई भी अपना बिजनेस रन कर रहा है कि कुछ ना कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि दैट दे शुड एडियर टू. हाँ, इन केस अगर कंपनी वो फॉलो नहीं कर रही, दैट मींस दे हैव सम नॉन कॉम्प्लायंस रिलेटेड थिंग्स, कि जहां ओके। पे वो ये रूल्स ब्रेक कर रही है, हाँ, इतना समझा। तो वो आपके नॉन कॉम्प्लायंस रिलेटेड चीज है. तो अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ नॉन कॉम्प्लायंस पार्ट दिखता है तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, आपका टॉपिक इस बारे में है. हाँ, ठीक है, तो पहले आपको लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड चीजें बताई हुई है कि जैसे कुछ आपकी लॉज एंड रेगुलेशन में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑडिटर की ड्यूटी लॉस चेक करना नहीं है बल्कि फाइनेंशियल चेक करना है. क्योंकि अब इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल्स पर. सो यू नीड टू कंसीडर दिस ऑल्सो कि अगर आप ऑडिट करते वक्त आपको कोई चीजें लग रही हैं या आपको कोई एक्चुअल फाइंडिंग्स मिल रही हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके बारे में अगर आपको शक हो रहा है तो आप उसके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो. मीन्स आपको उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. बिकॉज अगर आपको लग रहे हैं कुछ नॉन कॉम्प्लाइंस तो आप उसे ऐसे छोड़ के तो नहीं सकते ना, बिकॉज उसका इफेक्ट हो सकता है आपकी फाइनेंशियल्स पर. तो फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द मैटर, उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है. यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद मैनेजमेंट, जो सीनियर लेवल की मैनेजमेंट है आप उससे कंसल्ट कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट कर सकते हो. और गवर्नमेंट ऑडिट के केस में तो हम इवन एक्सटर्नल भी हम इन्फॉर्म करके चलते हैं.
कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं उनको भी बताकर चलते हैं ऑफिशियल्स को कि like this is the misconduct happening within the entity. ओके, Okay. बट व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ कि ऑडिट कर लिया, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सबमिट कर दिया, पब्लिश हो गया, फिर बाद में पता चला कि देयर इज अ नॉन कंप्लायंस या कुछ। ओके, देखो वैसे आपकी ऑडिटर की ड्यूटी रिपोर्ट तक ही है, लेकिन इन केस अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट दिखता है उसके रिगार्डिंग आपकी अलग से मतलब एडजस्टमेंट होती है। तो अगर सब्सिक्वेंट इवेंट का आपकी फाइनेंशियल्स पर इफेक्ट पड़ रहा है और वो सब्सिक्वेंट इवेंट आपका बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में ऑडिटर एडजस्टमेंट कर सकता है। और मतलब इट विल डिपेंड कि अगर मैनेजमेंट आपको करने दे रही है। अगर आपकी मैनेजमेंट आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला और वो एग्री नहीं है कि आप उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को री इशू करो, तो फिर उस केस में आप क्या करते हो, जिन जिन ने रिपोर्ट यूज करनी है आप उन्हें इन्फॉर्म करके चलते हो कि लाइक दिस इज द मैटर और इसका इफेक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल्स पर। क्लियर? हाँ, क्लियर। Okay, the matter of suspected non-compliance should be discussed with management and when appropriate to the TCWG also. Okay, अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है तो फिर उस केस में आप डायरेक्टली उससे हायर अथॉरिटी पर इन्फॉर्म कर सकते हो, लाइक TCWG. A compliance audit is based on premise that management is responsible for entities' compliance with the compliance requirement. Management responsibility for the entity compliance with compliance requirement includes. So what is the duty of management regarding compliance? So management should identify the government program and understanding and comply with the compliance requirement. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपकी फंडिंग दी जाती है कि ये प्रोग्राम आप कंडक्ट करवाओ, तो उस केस में कुछ कॉम्प्लाइंस भी दिए जाते हैं, लाइक यू हैव टू लाइक स्पेंड ओनली दिस अमाउंट ऑफ फंड और इस जगह आपको स्पेंड करना है। तो मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी बनती है, दे नीड टू चेक कि क्या क्या लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट दे कैन डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन effective control that provide the reasonable assurance that entity administers government program in compliance with the compliance requirement. ओके, जैसे आपके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, दैट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट कि वो उसे डिजाइन करे, इम्प्लीमेंट करे और मेंटेन करे। सिमिलरली आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जो कॉम्प्लाइंस चीजें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, ठीक है, आपको कितना उसमें फंड रेज करना है, कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कितना एक्सपेंस करना है, उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपने कंट्रोल्स उस तरह से बना सकती है सो दैट दे कैन इफेक्टिवली complied with the requirements. Then evaluate and monitor the entity's compliance. ठीक है, आपने बना दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, you need also to evaluate and monitor. टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम दिख रही है तो मैनेजमेंट की ये भी ड्यूटी है कि उसे टाइमली करेक्ट भी करें। ओके, तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है। अगर मैनेजमेंट या TCWG are unable to provide sufficient information spotting the compliance with laws and regulation, the auditor should evaluate the effect of sufficient appropriate audit evidences on the auditor's opinion. The auditor should evaluate the implication of non-compliance in relation to the in relation to the other aspect of the audit and take appropriate action. In the auditor's professional judgment, the effect may be material. The auditor should consider the legal advice also. So in case अगर आपकी management या TCWG आपको sufficient information नहीं provide कर रही, means they are decreasing your they are creating the scope limitations, then उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लाइक पॉसिबल हैं, यू कैन परफॉर्म देम, और अगर आपको लग रहा है कि वो भी नहीं हो रहे तो उस केस में यू कैन ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और डिस्क्लेमर भी आप देकर चल सकते हो। ठीक है, यस।
तो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि कोई मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है नॉन कॉम्प्लायंस का, तो उस केस में और आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस भी हैं, आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देके चलते हो। लेकिन अगर आपके पास स्कोप लिमिटेशन है, उस केस में आप क्या करते हो, विदड्रॉ भी कर सकते हो एंगेजमेंट से और या डिस्क्लेमर भी दे सकते हो। सो इफ auditor expresses a qualified or disclaimer if precluded from the client for obtaining sufficient evidences or whether non-compliance could be material। ठीक है, तो अगर आपको नॉन कॉम्प्लाइंस का मटेरियल इम्पैक्ट दिख रहा है, मीन्स अगर आपको कोई गैप प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस केस में यू कैन गिव द क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। लेकिन इन केस अगर मैनेजमेंट आप पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है और आपको प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे, तो उस केस में यू कैन गिव द क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन। और अगर इन केस आपको लग रहा है कि लाइक सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे या बहुत लिमिटेशंस लग रही हैं, तो इवन यू कैन विड्रॉ। ठीक है, आप विड्रॉ भी कर सकते हो अगर क्लाइंट इज रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ऑडिटर रिपोर्ट एज मॉडिफाइड। क्लियर? एक डाउट है कि अगर जब ऑडिटर विड्रॉ कर दिया एंगेजमेंट से, ओके, तो हम्म अगर एक जो न्यू ऑडिटर आ रहा है, तो एज अ न्यू ऑडिटर वो प्रीवियस ऑडिटर को अप्रोच करेगा कि हम्म क्या हुआ था ऐसा सब। सो द प्रीवियस ऑडिटर कैन टेल कि ये नॉन कंप्लायंस पार्ट की वजह से मैंने विड्रॉ किया है ऐसा करके। यस, ऑफ कोर्स। तो ये जब कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं हुआ? नहीं, बट रीजन तो वो बता सकते हैं। ओके। आपने प्रीवियस ऑडिटर रिलेटेड डिस्कशंस हमने की थी ना कि क्या क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दे कैन आल्सो टेल कि व्हाट इज द रीजन फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर क्यों चेंज किया, उसका क्या रीजन है, आप प्रीवियस ऑडिटर से पूछ सकते हो। ओके, समझा। A description of identified or suspected non-compliance should be included in the audit documentation. So whatever you are finding, you need to include in your audit documentation. Clear? The following examples are some of the hint that may like some of the cases that may give you the hint that there is something problem in the company, like some unauthorized transaction or improperly recorded transactions। कि आप देख रहे हो कि कुछ चेक, कुछ पेमेंट्स हुई हुई हैं विद इन द कंपनी जो अनऑथराइज्ड है एक्चुअली। इन्वेस्टिगेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसी एंड इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग और पेमेंट ऑफ अनयूजुअल फाइन और पेनल्टीज, की कंपनी ने कोई फाइन्स पेनल्टीज पे कर रखी हैं, तो फाइन्स क्यों लगे हैं कंपनी पर, ड्यू टू सम इलीगल थिंग। वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस cited in report of examinations, आपने जब कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें आपको मिल सकती है लार्ज पेमेंट कोई हुई है फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, सेल कमीशन और एजेंट फीस दैट अपीयर एक्सेसिव। So these are some of the hints that might lead to non-compliance under in the company. Okay. यस। ओके, सो जो भी मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं, अगेंस्ट दिस यू कैन टेक द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। देन आपको आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हो, तो आप इसके रिगार्डिंग भी आप उनसे एड ऑन करा सकते हो। जब हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि जिस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बेसिकली आपका एक लास्ट एविडेंस रहकर चलता है, कि जिसमें आपकी मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि दैट वो एक्नॉलेज करके दे रही है आपको कि यस दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट नॉट द ऑडिटर। सो अगेन कॉम्प्लायंस रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं, ऑडिटर कैन टेक द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। ओके, यस। सो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, ऑडिटर उसको रिटर्न में बस मैनेजमेंट से ले सकते हैं, जिसमें वो अपनी ड्यूटीज ये सारी मेंशन करके चल रही है। ओके, कि मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उसने डिजाइन इंप्लीमेंट कर रखे हैं लॉज एंड रेगुलेशन, इवन उन्हें मॉनिटर भी कर रही है, कोई डिफेक्टिव मतलब कोई
नॉन कॉम्प्लाइंस दिख रहा है मैटर, तो दे आर डूइंग सम स्ट्रेटेजीज, दे आर डेवलपिंग सम स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम दिस। और इन केस अगर मैनेजमेंट को कोई नॉन कॉम्प्लाइंस पार्ट पता है तो दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू द ऑडिटर. These are some of the acknowledgement that is given by the management. Okay, so go through once. Okay, I'll do it. Yes. Next is for review or attestation. So if you are performing the review or attestation, then what you need to do, more or less आपका सेम ही है. आपको जब भी आप दिख रहा है तो you first gain the understanding. आपको अंडरस्टैंड करके चलना है इम्पैक्ट उसका. देन यू कैन ऑल्सो लाइक गेदर सम एविडेंसेस, उसको आप हायर उसमें रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है. और इन केस ऑफ गवर्नमेंट यू कैन एक्सटर्नली रिपोर्ट ऑल्सो. Review में an accountant become aware of suspected non-compliance whose effect should be considered in financial statement. The amount could communicate such matter to management. If a accountant identify non-compliance that involve senior management, then you can communicate directly to the TCWG. Okay, I already explained you कि अगर management related आपको दिख रहा है कि management भी involve है, तो उस केस में आप directly TCWG को भी inform कर सकते हो. ठीक है. Even if you want to take some advice, some legal advice, you can also take. कि अगर आपको प्रॉपर नहीं पता लॉज के बारे में तो आप एक लीगल काउंसिल से एडवाइस भी ले सकते हो. ठीक है. कि क्या इस ये लाइक इस नॉन कॉम्प्लायंस का क्या इफेक्ट पड़ सकता है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, it is clear. नेक्स्ट इज अटेस्टेशन. In an examination or review, in conformity with attestation, the practitioner should make inquiries of appropriate parties to determine whether they have knowledge of actual or suspected or alleged non-compliance with laws and regulation affecting the underlying subject matter. ओके. सो यहाँ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग था. अब यहाँ आपकी मेजर कंसर्न क्या है? सब्जेक्ट मैटर. तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके सब्जेक्ट मैटर को अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हो. बताया आपको, आप इंक्वायरीज कर सकते हो. In an attestation engagement, the practitioner should consider whether matters such as non-compliance that comes to attention should be communicated to the responsible party, client or others. Okay. So यहाँ आपकी जो भी responsible party है, जो भी आपका client है, you can report to them. An examination or agreed upon procedure may be performed related to compliance with requirements of specified laws. सो जब हम अटेस्टेशन सर्विसेज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि आपकी रिव्यू नहीं, मेनली आपकी एग्जामिनेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हम करके चलते हैं कॉम्प्लायंस पे. Any compliance engagement associated with financial statement audit should be performed in conformity with the auditing standard. So if you are performing the compliance along with audit, आप अलग से कॉम्प्लायंस नहीं करा रहे बल्कि ऑडिट के साथ करा रहे, तो उस केस में आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे. बट अगर आप उसे एज अ अटेस्टेशन सर्विसेज परफॉर्म करा रहे हो तो उस केस में आपके SSAE स्टैंडर्ड्स आते हैं. इज इट क्लियर? Yes. So these are all about compliance. If an auditor finds some non-compliance with laws and regulation, then what should he do? In case of audit, in case of review, in case of attestation. Then Yes. so next is accounting estimates. अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है? आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज होके चलते हैं. लाइक आपकी कौन सा मेथड्स यूज हो, आप अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो या दूसरा मेथड यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, या आप बैड डेप्थ एक्सपेंस बना रहे हो तो उस पर
आप उसको किस परसेंटेज पे बना रहे हो, आप वारंटी एक्सपेंस कितना बना रहे हो, तो दीज आर सम एस्टिमेट्स दैट आर totally depend upon the professional judgment of a management. So in case of any estimates, what should an auditor do? Risk of material misstatement may be greater for risk related to significant judgment matter, because जिसमें judgment involve हुई हो, अगर तो जिसमें सब्जेक्टिव टोटल इन्वॉल्व हुआ है उसमें मिसस्टेटमेंट के इतने चांसेस नहीं है, बिकॉज इट कैन बी इजिली फाइंड आउट. लेकिन अगर किसी ने जजमेंट में प्रॉब्लम आई है, दैट में like impose greater risk, because differing interpretation of accounting principle required complex or subjective judgment or assumptions about the effect of the future event. An accounting estimate is basically the monetary amount for which the measurement, in accordance with the requirement of applicable financial reporting framework, is subject to estimation uncertainty. ओके, सो एस्टिमेट आर यूजुअली कि जो भी आप बना के चलते हो और जिसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. और नहीं समझा, आप वापस एक्सप्लेन करोगे? ओके, एस्टिमेट्स क्या है कि बेसिकली आप एस्टिमेट्स पता है आपको, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? नहीं। ओके, सो काउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, आप जैसे आप बैड डेप्ट एक्सपेंस बनाते हो, अलाउंस क्रिएट करते हो ना फॉर क्रेडिट एक्सपेंस, क्रेडिट हाँ। लॉस एक्सपेंस, या आप वारंटी एक्सपेंसेस बना रहे हो, या इन्वेंट्री रिलेटेड आप कोई अलाउंस क्रिएट कर रहे हो, कोई वैल्यूएशन रिलेटेड अलाउंस क्रिएट कर रहे हो, तो दीज आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, सम जजमेंट. ठीक है, अब ठीक है। आपने आपके जैसे अकाउंट रिसीवेबल की आपने अलाउंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपके पास सेल्स मेथड भी होता है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल मेथड भी होता है. तो कौन सा मेथड यूज करना है, कितनी परसेंटेज लेनी है उसको बनाने के लिए, तो ये आपकी टोटली मैनेजमेंट डिसाइड करती है. तो मैनेजमेंट ने उसे किस बेसिस पर डिसाइड कर रखा है. अब हो सकता है कि उसने कोई प्रायर ईयर के डेटा को लेकर लाइक बना रखा है, क्योंकि ये सारी मैनेजमेंट की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करती है. अब कितनी होनी चाहिए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो मैनेजमेंट ने बना रखी है वो किस बेसिस पर बना रखी है, क्या वो अजम्पशन सही है या नहीं. तो इट माइट क्रिएट सम क्वेश्चंस फॉर एन ऑडिटर, बिकॉज हो सकता है कि मैनेजमेंट जब बना रही है तो वो अपने फायदे के लिए उसे कम ज्यादा भी तो कर सकती है. हाँ, थोड़ा समझा। क्योंकि सेल्स के लिए क्या है, सेल्स के लिए आप इनवॉइस देख लोगे, आपको पता है उसके रिगार्डिंग स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. लेकिन जो चीज बेस्ड ही प्रोफेशनल जजमेंट पर है, तो उसमें रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि नोबडी नोज कि लाइक उन्होंने क्या सोचकर ये चीज की है. Management is responsible for making an estimate included in financial statement. An estimate based on subjective as well as objective factor may be difficult for management to establish control over them. So, as an auditor, your duty is to obtain evidences कि क्या वो estimates आपके proper हैं या नहीं हैं, और like or in about whether accounting estimate, including fair value estimate, insignificant account and disclosure are properly accounted for. कि आपकी estimates proper बनाए हैं या नहीं, और second thing कि क्या वो properly disclosed है financials पर या नहीं. Okay, यस। so you need to identify कि क्या क्या estimates हैं, और like what is the process that is used to develop that estimate, कि आपके estimates किस basis पर बनाए गए हैं, और उससे रिलेटेड आपका क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है. क्लियर? हाँ, क्लियर। An auditor should obtain an understanding of the following to provide a basis for the identification and assessment of risk for accounting estimates.
So the requirement of the applicable reporting framework relevant to accounting estimates. How management identify those transaction event or conditions that may give rise to the for accounting estimate to be recognized or disclosed in financial statement, and how management make the estimate and data on which they are based. So you need to consider कि क्या क्या requirements हैं, किस basis पर आपके estimates create किए गए हैं, or what is the management process, like how they have created those estimates, whether they have used previous year number or they have made certain assumption on basis of which they have developed the accounting estimates. ठीक है, or whether they have used any specialist or not, or whether the estimates are actually like following the current year number. Like अगर आपने कुछ वारंटी एक्सपेंसेस के लिए एस्टिमेट्स डेवलप किए और आपने एक्सपेंसेस दिखा दिए, कुछ अलाउंस क्रिएट कर दिया, तो क्या आपके एक्चुअल फिगर्स लाइक उससे उसके रिगार्डिंग रेलेवेंट है या नहीं, कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा आपके एक्चुअल और बजटेड में. समझा. Based on the assessed risk of material misstatement, the auditor determines whether management has properly applied the requirement of applicable framework and whether the methods are appropriate or have applied consistently. कि क्या कोई inconsistency तो नहीं दिख रही आपको, कि prior year में कुछ use किया था, आप कुछ use कर रहे हैं, कि they are like consistently changing their method. तो हो सकता है कि उस अगर वो ये कंसिस्टेंटली एस्टिमेट्स चेंज कर रहे हैं, तो देयर शुड बी वैलिड रीजन ना कि क्यों चेंज किए जा रहे हैं एस्टिमेट्स. ठीक है. सो बेसिकली रिस्क आपका एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग ज्यादा होता है, बिकॉज इसमें आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्सिटी है, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रेलेवेंट डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल आपकी मैनेजमेंट ने कुछ डेटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पर एस्टिमेट्स बनाए हैं, तो क्या वो डेटा रिलायबल था या नहीं. दैट ऑल्सो रेज द क्वेश्चंस, आपकी जो assumptions बनाए हैं और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कंपल्सरी ना कि जो सोचा कि वही हो जाए. So there is all uncertainty is associated with this kind of assumptions. Okay. So as an auditor आप क्या कर सकते हो, आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो, आप उनके मेथड को समझ सकते हो, उन्होंने क्या क्या डेटा यूज किया है, क्या assumptions यूज की हैं, आप उन्हें समझ सकते हो. इवन यू कैन ऑल्सो लाइक इंडिपेंडेंटली क्रिएट सम like do some calculations. आप खुद से एस्टिमेट्स क्रिएट भी कर सकते हो कि ये मैच करने के लिए कि क्या मैनेजमेंट के एस्टिमेट आपके प्रॉपर है या नहीं है. और इवन यू कैन कंपेयर द करंट ईयर नंबर विद दीज एस्टिमेट, या प्रायर ईयर से कंपेयर करके चल सकते हो कि क्या एस्टिमेट में जो एस्टिमेट्स बनाए गए थे और जो एक्चुअल नंबर थे, क्या आपकी वो मैच कर रहे थे या नहीं, कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी तो नहीं थी. ओके. Yes. So I already explained you कि what procedure and an auditor can do. So first he should test the company's process including method, data, significant assumptions. First of all method जो कंपनी ने यूज किए हैं must be in conformity, क्या वो applicable framework के अकॉर्डिंग है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लुक फॉर द मेथड, कि मेथड्स आपके प्रॉपर हैं या नहीं, कि वो आपके एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं. नेक्स्ट डेटा, अब जो डेटा मैनेजमेंट ने यूज किया है कि वो डेटा आपका रिलायबल है या नहीं, रेलेवेंट रिलायबल है या नहीं. देन जो assumptions यूज की हैं, you can understand those assumption. These assumption include susceptible to bias, कि आपको अगर लग रहा है कि हो सकता है कि ये assumptions कहीं पर biased हो सकती हैं, मीन्स कि कहीं पर लाइक मैनेजमेंट biased हो सकती है for making these assumptions.
Those involve unobservable or variable data, and those depend on the company's carrying out a specific course of action. Then again, you can develop an independent expectation. As I told you कि man ऑडिटर खुद से भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी ये जो डेटा मैनेजमेंट ने अजम्पशंस यूज की हैं उसके बेसिस पर आप खुद से एस्टिमेट बनाकर देख सकते हो कि क्या आपने जो बनाया और मैनेजमेंट ने जो बनाया इट विल बी कंपेयरेबल और नॉट. देन और यू कैन लाइक गेदर द एविडेंस कि आपके एस्टिमेट्स और जो एक्चुअल डेटा है वो आपका मैच कर रहा है या नहीं. क्लियर? हाँ क्लियर है. So this is same given that you can perform a retrospective review कि आप prior period के check कर सकते हो कि क्या जो judgment और assumptions हैं वो आपकी actual figure से match कर रही हैं या नहीं कर रही. ठीक है? हाँ. So if an auditor identify a possible bias on the part of management in making accounting estimate, the auditor should evaluate whether circumstances producing such a bias represent a risk of material misstatement due to fraud or not. So if you are finding that कि yes कि ये जो estimate आपकी कुछ assumptions पर based हैं कि ये assumptions आपकी biased हो सकती हैं, मीन्स हो सकता है कि वो मैनेजमेंट ने अपने प्रॉफिट के लिए या कुछ अदर मोटिव के लिए वो assumptions बनाई हो. तो उस केस में आपके जो रिस्क है यू कैन एक्सेस दोज रिस्क कि आपका फ्रॉड रिलेटेड रिस्क कितना एसोसिएटेड हो सकता है. Okay, so this was all about the accounting estimate. अंडरस्टूड. Okay, this is big topic, related party transactions. Okay, so this is about related party and related party transactions. So what happens if an auditor encounters some issues related to related party transactions? So related party क्या होती हैं? Family member or someone. Like the parties, those are actually related with the company, like its affiliates की कंपनी की सब्सिडरीज, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के पार्टनर्स, प्रिंसिपल ऑनर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली, देयर मैनेजमेंट. दीज आर सम रिलेटेड पार्टी. अब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन आपकी फेयर मार्केट वैल्यू पर हो रही है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. कि आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन है कि जैसे आप किसी एक्सटर्नल पार्टी से वो ट्रांजेक्शन करते हैं अगर वो सिमिलरली आप उसे रिलेटेड पार्टी से कर रहे हो देन नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आपकी आर्म लेंथ पर नहीं है, मीन्स दे आर एक्चुअली बिलो और अबव द फेयर मार्केट वैल्यू, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देकर चलने होते हैं कि आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं और यू नीड टू डिस्क्लोज दीज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, Yes. so as an auditor you should perform certain procedure to obtain an evidences, to obtain an understanding about relationship and transaction with the related party. सो एज एन ऑडिटर फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी हैं कंपनी की और उनके रिगार्डिंग क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, सबसे पहले आप उसे समझ के चलोगे. उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू सम इंक्वायरीज. जो भी आपके एंटिटी पर्सनल हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं. यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दी ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो. आप ट्रांजेक्शन्स देख कर चल सकते हो, आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो. और इन केस अगर आपको ट्रांजेक्शन्स में
कोई अनयूजुअल चीजें दिख रही हैं या आपको कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं, यू कैन ऑल्सो कंफर्म विद द रिलेटेड पार्टी। ओके, आप और उसके रिगार्डिंग फिर आप एविडेंसेस गैदर करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, Yes. so do you want me to cover this topic today or tomorrow, because it is a big topic? Can we start tomorrow? Okay, ठीक है, I will continue this topic tomorrow. Okay. ठीक है, any doubt till here? No doubt. Okay, then I will continue this topic tomorrow. Okay. Thank you. Bye bye. Good night. Okay, bye, good night. सर आप वो बता दो। हेलो।